Assalamu alaikum everyone, and welcome to today's webcast, Career in IoT. I am Varda Ziabasi, an aspiring software engineering student, also working as a program coordinator at ETL Online. And alongside me is my co-host Muhammad Mutahir. Assalamu alaikum everyone. Mohammed Mutahir over here. I'm also an aspiring software engineer, currently in my fourth semester, and also serving as a program coordinator here at ETL Online. We're thrilled to have you with us as we dive into the fascinating realm of the Internet of Things, also known as IoT. Whether you're a beginner curious about this rapidly growing field or an intermediate learner looking to expand your knowledge, you are in the right place. Okay, before we dive into today's discussion, we'd like to introduce ETL Online, Empowerment Through Learning. ETL is a non-profit organization dedicated to building a vibrant online tech community in Pakistan. Our mission is to inspire IT students and recent graduates to reach their full potential through continuous learning and self-improvement, becoming leaders in Pakistan's IT industry. We envision Pakistan being recognized globally for producing top-notch IT professionals who develop cutting-edge technology solutions. Now, joining us today is our esteemed guest and speaker, Sir Imran Shafqat, the Chief Technology Officer and co-founder of ThinkTrax, a renowned IT authority. Sir Imran Shafqat has been at the vanguard of creative IoT solutions for years and possesses an abundance of experience and expertise. Sir Imran Shafqat, please welcome. We are delighted to have you join us here. Could you please introduce yourself and your company? Thanks, Mutahir. Thanks, Vada. I'm really excited to be here. And hi, everyone. So my name is Imran, and I actually come from a background very similar to yours. I did my bachelor's from UMT in computer science back in 2002. So it's been almost 22 years. I've been pretty much been an application developer in my career. Started off from Pakistan. I worked in a software house here. And then I worked in various countries in the Middle East and Europe. And then I joined Microsoft as a permanent consultant in 2011, where I worked for about 5 years. That's where I became a cloud architect. I started looking at some very interesting prospects of IoT. I was involved in some very interesting IoT projects. We will be talking about some of those projects in our session today. And then in 2016 is when I, along with my co-founder, we created a startup. We got involved in a startup business called ThinkTrax. I've actually got a slide where I'll be talking about some of the things we are doing in this company as well. So I'm really excited to be here. This is an area around IoT. I've been doing it for the last 10 years. And yeah, I'm quite glad. Back to you, Vardha. All right, before officially commencing our interview, thank you, Sir Imran. I would like to remind all our members to ask their queries in the Q&A chat. We will be reading and asking all your questions, so feel free to ask anything related to today's event, and we will cater to your queries. Now let's start with the basics. Sir, with all respect that is due, IoT है क्या? मतलब मैं वेब डेवलपमेंट छोड़ के IoT में क्यों आऊँ? I think that's a great question, Tahir. So it's always good to start from the basics. So IoT really stands for Internet of Things. So what does that really mean? You know, what is these things? It's really about the devices that are connected to each other or to the internet, right? So a thing could be any physical object that contains an embedded system, contains a small circuit. It's able to communicate with other circuits. That's really things, and a collection of and a network of those things is really what we call the IoT. So if you look at the a very basic example of IoT, just to get some idea of what these things are. So one of the very simplest example would be a smart bulb which is connected to your mobile phone.
So these days you can actually buy these off the shelf. Philips kind of started them at the beginning, but now there are so many alternates available. You can get these smart bulbs, you have smart fans. You can simply install an app on your mobile and you can control them. You turn them on, you can reduce the speed of a fan. This is a very classic, very simple example of IoT. Back to you, Mutahar. Thank you so much, sir. सर इमरान, अच्छा IoT में और क्या है? ये सिर्फ घर के AC और बल्ब ही जलाते हैं या it's something bigger than that? Like what is all the hype about? That's actually a very good question. Hype तो काफ़ी ज़्यादा है और अगर आप ये देखें कि IoT का पोटेंशियल क्या है इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, तो आप यहाँ देखेंगे कि even the market in Pakistan is estimated to be around $1,600 million in this year. और ये market size, which the number may seems quite big, लेकिन in comparison ये number छोटा है. If you look at the market size in US, for example, it's almost $250 million. It's actually $342 billion. So it's a much, much larger market outside. But even in Pakistan, the potential is becoming big. बहुत सारे projects पे even government is taking initiatives. Smart city, you guys, most of you may be aware, there is a surveillance smart city project जो लाहौर में भी लगाया गया था और अब मज़ीद शहरों में लगाया जा रहा है. This is all an example of government really taking the IoT elements seriously और इसमें market में opportunities जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जा रही. So I'm just gonna continue our example for simple IoT कि जो मैंने आपको बताया, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं. So imagine कि I am able to now control my fan, I'm able to control the light, like Varda is saying, you know, so what, you know, where do we go from here? So imagine now all of a sudden अगर आपके पास एक ऐसी requirement है कि you need to now control the lights or these electronic devices for multiple sites, right? So imagine करें कि अगर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं या बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं, तो व्हाट वुड दैट देन इन्वॉल्व? तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेम है, बट वी जस्ट दिस इज वेयर वी इंट्रोड्यूस सम वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, networking technologies, cloud technologies, distributed large scale application architectures, और हम इनके थ्रू एक बहुत लार्ज स्केल किस्म का IoT का सेटअप कर सकते. सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल को लेके चलें या स्मार्ट सिटी के एग्जांपल को लेके चलें, सो यू कैन इमेजिन ऑल दीज सर्वेलेंस कैमरास दैट आर सेट अप अक्रॉस द सिटी, उसको सेंट्रलाइज तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है. तो वो सब के सब डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपस में. दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर ईदर ऑन द क्लाउड और समवेयर ऑन प्रेमिस, और देन देयर इज अ स्वीट ऑफ एनालिसिस एंड मैनेजमेंट एप्लीकेशंस जो उनको मैनेज कर रही हैं. ठीक है. So we will briefly now move towards the different segments जहाँ पे IoT इस्तेमाल होता है. तो ये this is kind of a continuation of that of what we're talking about. तो अगर आप इसको देखें तो the IoT is actually everywhere. मतलब मैं I was recently looking at something that even the ACs that you have, they have applications that you can connect to your phone, your smart watches, you know, they are connected to the internet. आजकल डायबिटिक जो कुछ जो मरीज होते हैं, आजकल डिवाइसेस आ रहे हैं जो कॉन्टिन्यूसली दे रिमेन कनेक्टेड टू योर बॉडी, जो आपकी ब्लड शुगर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, क्योंकि सम पीपल गेट टू द सीरियस लेवल ऑफ डायबिटीज़ जहाँ पे शुगर ड्रॉप हो जाती है बहुत जल्दी एंड दे कैन फेंट, या उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो दे हैव नो चॉइस बट टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर इट. तो वो भी एक IoT डिवाइस है जो बॉडी के साथ अटैच्ड है और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, और जहाँ पे लेवल्स सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे या ऊपर चले जाते हैं, यू गेट एन अलर्ट. तो ये जो IoT स्पेस है ये वेरिएबल्स के कैटेगरी में आ जाती है. ठीक है. इसमें ह्यूमन के वेरिएबल्स हैं, वॉच हो गया, ये जो डिवाइसेस मैंने आपको बताए ये हो गए, और इसमें इवन एनिमल्स, फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, इन पे भी वेरिएबल्स अब आ गए. एक्चुअली वी वर पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप. जब हम लोगों ने अपनी कंपनी का स्टार्टअप किया था तो हमारे साथ एक और कंपनी थी, दे वर कॉल्ड ट्रैकनर. दे हैड अ डिवाइस, अ वेरिएबल डिवाइस फॉर हॉर्स फार्मिंग. वो ये जो हॉर्सेस हैं उनके ऊपर वो लगाते थे डिवाइस,
which is very crucial for their temperature. तो एक इस तरह की monitoring के लिए for horse health, अगर उसका temperature एक certain level से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो it's an early indication that the animal is going to be sick, तो they can take early action. तो ये थोड़ी सी examples हैं personal variables से related IoT की. अब थोड़ा सा आगे चलें तो you look at your house. Even you have so many appliances which are now connected to the internet. We talked about some of the AC, we talked about some of the bulbs, but अभी वो you may have heard about the smart fridge. एक बड़ा interesting एक fridge की example है. It's actually a product by Samsung and it's available, जिसमें it keeps track of even the eggs in your fridge. अगर वो अंडे 1 दर्जन पड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो 3-4 रह गए, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि आप उसको अपने सप्लायर के साथ लिंक कर सकते हैं और इट विल एक्चुअली प्लेस एन ऑर्डर ऑन योर बिहाफ. तो जैसे यूके में इट एक्चुअली प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर अमेजोन कि जी ये चीज़ फ्रिज में कम हो गई है, तो ऑटोमेटिकली आपके घर आ जाएगी. So there's so many different examples about appliances, about your home, about the way you get the delivery. और फिर इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और बाहर आएँ तो you can look at the IoT applications in the industry. अब इंडस्ट्री में तो there are tons and tons of examples. I'll just take some of them from the industry और कुछ examples मैं दूंगा जो हम अपने business में कर रहे हैं. So if you look at, for example, smart spaces में आजकल जब कोरोना आया था, and a lot of people had to work remotely, और उसमें फिर बहुत से offices जो हैं वो hot desk space offices बन गए. तो उसमें there was a whole element of security, smart doors, कौन सी स्पेस ऑक्यूपाइड है, कौन सी स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, बिल्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल, बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी कंट्रोल. तो आप एक जगह बैठे हैं, आपकी 8-10 इस तरह की बिल्डिंग्स हैं और वो सेंट्रली मैनेज हो रही हैं. आपको पता लग रहा है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, कितना बिल उसका आज था, कितना बिल उसका कल है. So all that data that you're getting is all connected and enabled through IoT. तो ये all of these spaces are very very exciting. If you look at, इसमें एक vehicle बना हुआ है. Vehicle tracking is also very interesting IoT application. आजकल जो गाड़ियाँ हैं, even the Toyota car has a built-in 4G SIM in it. वो continuously track कर रही होती है कार की engine की health information, और they're sending the information back to Toyota for their analysis. कि जो गाड़ियों के इंजन जो चल रहे हैं उनमें क्या wear and tear आ रही है, क्या issues आ रहे हैं, they are tracking those and they are sending them back to the factory. In fact, in the UK जब आप गाड़ी खरीदते हैं, they actually make you sign a form जिसमें लिखा होता है कि आप ये डेटा कंपनी के साथ शेयर करेंगे, और उसमें इंटरेस्टिंगली there is no choice. अगर आप उस फॉर्म को साइन नहीं करेंगे तो आप गाड़ी नहीं ले सकते. I'm not sure about Pakistan, यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, but I think eventually they'll do it here as well if they're not doing it. Similarly, if you look at the industrial IoT is a whole field of its own. हमारा जो business है, that is actually an industrial IoT business. What we do is we keep a track of the manufacturing machines. जो मशीनें माल बना रही हैं फैक्ट्री में, क्या वो टाइम से अपना माल बना रही हैं, क्या मशीन बंद है, अगर बंद है तो क्या रीज़न है उसकी बंद होने की, कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है. So there's a whole heap of applications that you can do when you come to industrial IoT. इसी तरह से travel space है. Travel space में very interestingly, I'll give an example. I was actually part of a project for Rolls-Royce in the UK. This is when I was working for Microsoft. तो Rolls-Royce जो है वो जहाज़ों के इंजन बनाता है. तो ये जो आपकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज हैं, such as Emirates Airlines, ये Qatar Airlines, when they buy planes, they actually don't buy the engines with them because the engines are very very expensive. तो अगर वो इंजन भी खरीदेंगे और उसको मेंटेन करेंगे, सर्विस करेंगे, तो वो जहाज़ की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी. So what they do is they own the body, but they do not own the engines. The engines are still owned by Rolls-Royce. तो Rolls-Royce क्या करता है, इन engines को जो जहाज़ों में चलते हैं उनको as a lease प्रोवाइड करता है. It's basically providing engine as a service rather than selling the engine. तो जब जहाज़ आपका UK से न्यूयॉर्क फ्लाई करता है, as an example, it's an 8-hour flight. During that 8-hour flight, this engine collects around 2 gigabytes of data. It's सब sensors का data ये collect होता है. This data gets transported over to the airport. Airport से ये data cloud पे ingest होता है और उस पे analysis होता है. So Rolls-Royce are
continuously keeping an eye on the engines of the aircraft. वो देख रहे होते हैं कि हमारे किसी इंजन में कोई मसला तो नहीं आ गया, क्या हमें उसको सर्विस तो नहीं करनी, बिकॉज इट्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट कि वो इंजन को जितना जल्दी उसकी प्रॉब्लम को ठीक करें, वरना अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा. तो द सूनर दे कैन डू इट द बेटर. दिस इज एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल जो टोयोटा कर रहा है अपनी गाड़ी में. टोयोटा आपकी गाड़ी के इंजन की हेल्थ इंफॉर्मेशन ले रहा है थ्रू दैट 4G सिम, और जो रोल्स रॉयस है वो ज़रा लंबे तरीके से ले रहा है, बट इवेंचुअली दे आर कीपिंग एन आई ऑन देयर प्रोडक्ट्स फॉर बेटर सर्विसिबिलिटी एंड बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस. ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं. स्मार्ट हेल्थ की मैंने थोड़ी सी बात हल्की फुल्की की है पहले से कि यू कैन ट्रैक योर बॉडी, यू कैन ट्रैक योर वाइटल्स continuously on your app. I think basic smart watches these days, they can keep track of your sleep details and you know your heart health and so many other things, which is the great example of IoT basically. We've touched briefly about smart cities, but I want to touch one more topic which is not covered in this diagram, which is the जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या इकोनॉमी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में चलती है, वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री एज यू गाइज ऑल नो. तो एग्रीकल्चर में IoT की बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं और बहुत इनिशियल स्टेजेस पे काम हो रहा है. मैंने आई हैव येट टू सी अ वेरी मैच्योर प्रोडक्ट इन दिस एरिया विच इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ पोटेंशियल फॉर यू गाइस. ठीक है, आप लोग अभी सीख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इस फील्ड में अगर आना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ ह्यूज एरिया जहाँ पे यू कैन मेक अ डिफरेंस, यू कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट. ठीक है जी. अब थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं अगर आपको इसमें एग्रीकल्चर के हवाले से दूं तो इसमें बहुत से सेंसर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली आपके सॉइल का मॉइस्चर मॉनिटर कर सकते हैं. अब आपको पता है, आपने फसलें देखी होंगी बहुत सारी, कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे चावल है जिसको कंटिन्यूसली पानी चाहिए, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको बड़े स्पेसिफिक टाइम पे they need either pesticides or they need to be watered, या उनको सन से आपने शेड से बचाना है और उसके ऊपर आपने वो शीट लगानी है. तो देर आर सो मेनी थिंग्स जिसका अगर आप टाइमली एक्शन लेंगे तो यू कैन गेट बेटर यील्ड, यू कैन गेट बेटर एफिशिएंसी. तो ज़्यादातर जो IoT की एप्लीकेशंस है ना, इट्स ऑल अबाउट little devices, little things, tracking information, tracking data. Why? So that you can take the timely action at the right, rather than when it's too late. तो आप एग्रीकल्चर की एग्जांपल देखें, अभी मैंने आपको रोल्स रॉयस का बताया, मैंने आपको ह्यूमन की एग्जांपल दी. तो वो ब्लड शुगर ज़्यादा गिरने से पहले इमीडिएट एक्शन, दैट्स द होल थिंग. जहाज़ का इंजन ख़राब होने से पहले इमीडिएट एक्शन. किसी फसल में सर्टन क्रूशियल टाइम पीरियड गुजरने से पहले इमीडिएट एक्शन. सो इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम so that you can take the right action और चीज़ को ख़राब होने से बचाएं, चीज़ की efficiency बढ़ाएं. It's all around that. And you can imagine this is a multi-billion dollar inefficiencies हैं हमारे सेक्टर में हर जगह पे. इवन एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पानी निगलेक्ट हो जाता है, जहाँ पे रिसोर्सेज की थेफ्ट भी हो जाती है, जैसे कि डीजल वगैरह जो है वो थेफ्ट हो जाती है. जो मालिकान हैं उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है. फैक्ट्रीज में ऐसा होता है कि माल ख़राब हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो रही तो जो मालिकान हैं या जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको आइडिया नहीं है कि हमारे एक्चुअल फ्लोर्स में क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन. सो देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच गेट एनेबल्ड बाय IoT. इसी का थोड़ा सा एग्जांपल है फार्मिंग की, एक और स्लाइड है, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट. इसमें फॉर एग्जांपल आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, आपके ड्रोन्स हैं. ड्रोन्स हैव एक्चुअली UMD में आई नो फ्यू स्टूडेंट्स जो इस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, वो सर्वेलेंस का काम कर रहे हैं यूजिंग ड्रोन्स ऑन अ लार्ज फार्म्स. उस लार्ज फार्म्स में अगर आपको फार्मिंग से थोड़ा सा आइडिया है तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिन पे कुछ जानवर भी फसलें ख़राब कर देते हैं आके, उनकी भी ट्रैकिंग हो जाती है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर ह्यूमन एक्टिविटी कोई ग्रुप है या कोई लोग ऐसे आ गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, यू कैन ट्रैक देम, यू कैन मॉनिटर देम. इसके अलावा जो एक्चुअल प्रोसेस मॉनिटरिंग इज़ देयर, राइट. अगर एक ट्रैक्टर चल रहा है या दवाई वाला कोई चीज़ स्प्रे हो रहा है
तो क्या प्रॉपरली हुआ कि नहीं हुआ, राइट? हाउ डू यू नो? यू आर रिलाइंग ऑन पीपल टू टेल यू द फैक्ट्स, और ह्यूमन एरर्स के बहुत से चांसेस हैं, बट यू कैन मॉनिटर इट योरसेल्फ। तो ये देखेंगे आपकी मॉनिटरिंग फार्म एक पूरा का पूरा एक एरिया है। इसी तरह से जो है you can monitor for example forestry. You can monitor obviously the data, the आप सप्लाई चेन भी इसको मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल चल रही थी कि जो पानी लगना है फसलों को, जो आपके पीटर जैसे कहते हैं, जनरेटर जैसे कहते हैं, वो कितनी देर चल रहे हैं, राइट? इसमें भी वही एलिमेंट आ जाता है टोयोटा और रोल्स रॉयस वाला, कि जो जनरेटर्स हैं वो कितने आवर्स चले, कितना फ्यूल कंज्यूम किया, कितना पानी उन्होंने फ्लो रेट से कितना अच्छा, फ्लो रेट मीटर लगा के पानी भी हिसाब लगा सकते हैं कि कितना पानी एक्चुअल में लगा फसल को। तो उसकी सारी हेल्थ, उसकी ट्रैकिंग सारी जो है, दैट्स ऑल पॉसिबल। ठीक है सर? So with that, I'll go back to you, Vardha and Tahir. Just a quick comment here. A lot of people, a lot of students are asking very good questions. One of them being कि क्या ये slides record हो रही हैं या session record हो रहा है? जी, alhamdulillah session record हो रहा है. Slides will be available, but you guys have to go and register on community.etlonline.org. Thank you so much, Sir Imran. Thank you so much, sir, for reminding us about ETL. Sir, एक नया question है. Where should those interested in starting a career in IoT begin? मतलब what skills are most important? क्योंकि Python है, for example, अगर मैं 15 दिन में Python सीख लूँ तो हो जाएगा, या अगर मैं किसी totally different field में हूँ, so how will I jump to IoT? मतलब 100%। सो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देयर आर सम बेसिकली कैरियर पाथ्स इन आईओटी। आईओटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम स्टैंडर्ड फुल स्टैक एप्लीकेशन। तो इसका आई वुड से 70 to 80% जो टेक्निकल स्टैक है, दैट इज़ कवर्ड बाय योर स्टैंडर्ड फुल स्टैक, जिसमें you have a web front end or a mobile front end, you have backend APIs, and then you have database behind it. So ये एक standard 3-tier architecture होता है, ये तो IoT application में भी इस्तेमाल होता है। What then it further adds on top is this, the first two things that you see here on the slide. These are around the devices and the networks and the security element that comes with it. तो devices की जो जैसे हमने बात की, अभी एग्जांपल में हमने फार्मिंग की थोड़ी सी एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें जो डिवाइस होंगे वो दीज आर एक्चुअली सेंसर्स कनेक्टेड टू स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो डेटा अपना ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब वो जो डेटा, इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं, वन इज़ अराउंड डेटा कैप्चर, द अदर इज़ अराउंड डेटा ट्रांसमिशन। तो इससे रिलेटेड जो है वो दिस ओपन्स अप द होल एरिया इन द करियर पाथ, जहाँ पे आपके embedded engineers, आपके electronic engineers, these kind of roles really come into play in terms of career paths in IoT. इसके साथ साथ networks and security से related, because these devices need to communicate their data out to the gateways, to the cloud. तो वो जो communication है वो wired, wireless, radio protocols, उनकी सिक्योर कम्युनिकेशन, ये एक पूरा एरिया है जो कैरियर पाथ्स में आ जाता है। इससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी जो है वो जॉब्स हैं, एंड यू कैन इमेजिन सिक्योरिटी इन आईटी इज़ ऑलवेज एन एरिया, हॉट एरिया, दे आर हाईली पेड काइंड ऑफ जॉब्स होती हैं। और ये इस तरह के आईओटी बेस्ड सॉल्यूशन में अगर आप नेटवर्क्स में और सिक्योरिटी में अगर आप अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, तो देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। इसके साथ साथ अगर आप इस स्टैक को फॉलो करें तो इसमें आपके पास क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि सर्वर्स क्लाउड पे पड़े हैं। एज कंप्यूटिंग इज़ अ न्यू टर्मिनोलॉजी coined these days. It's literally about the compute resource rather than it running in the cloud. It actually runs on premise. तो इनको मैनेज करने के लिए पूरा एक जो आपके पास DevOps है, आपके पास इंफ्रा ऑप्स है, these days ML ops, all of these roles come into play. तो इनकी बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनकी जॉब्स हैं मार्केट में। और ये लास्ट टू, आई एम श्योर यू गाइस हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दीज इन रिसेंट डेज। सो अगेन
with IoT it's not much different from standard information systems. जैसे एक आम इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो डेटा को हैंडल करता है, IoT का भी जो एप्लीकेशन है, सोल्यूशन है, वो भी डेटा को हैंडल करता है, डेटा कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है, किसी तरीके से उसको विजुलाइज कराता है, और उस डेटा पे देयर आर obviously machine learning opportunities, there is data science opportunities, there is a whole heap of things. हम जब भी बात कर रहे थे कि डेटा पे एक्शन लेना है, वो जो डेटा पे एक्शन लेना है, इफ दैट कम्स थ्रू लर्निंग फ्रॉम द डेटा, देन दैट ऑल इन्वॉल्व्स मशीन लर्निंग, ठीक है ना। हम लोग जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आईटी रोल्स को, इन्हीं आईटी रोल्स को अगर मैं, ये जो आप देखेंगे तो ये रोल्स हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। तो ये हमने स्टैंडर्ड वेबसाइट से लिए हैं जो इस वक्त एक्टिवली लोग हायर कर रहे हैं। IoT के सोल्यूशन इंजीनियर्स की नौकरियां हैं, IoT आर्किटेक्ट्स की नौकरियां हैं, IoT एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइनर्स, ये वो जो हार्डवेयर और वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आ जाते हैं, और सिक्योरिटी की जैसे मैंने बात की। और ये जो आप नीचे देखेंगे डेवऑप्स, QA जो आपके टेस्टर्स होते हैं, और स्टैंडर्ड टीम मैनेजमेंट, ये क्रॉस कटिंग रोल्स हैं। ये IoT सोल्यूशन में भी इस्तेमाल होंगे, ये नॉन IoT सोल्यूशन में भी इस्तेमाल होंगे। डेवऑप्स का मतलब है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, उसको मॉनिटर करना। ये तो आपको हर एप्लीकेशन में रोल चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल, यू नीड इन एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, यू नीड क्वालिटी एलिमेंट। और मैनेजमेंट इज टू मैनेज रिसोर्सेज, मैनेज प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे वो रोल्स हैं जो IoT के इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं, और ये वो हमने रोल्स यहाँ पे रखे हैं जो मार्केट में इस वक्त हायरिंग हो रही है। अगर आप इन पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड आउट कि वेरियस ओपनिंग्स आर देयर इन वेरियस कंपनीज जो एक्टिवली हायर कर रही हैं। पाकिस्तान में हायर कर रही हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हायर कर रही हैं। बल्कि मैं भी एग्जांपल दे रहा था, हमारे ही कंपनी के एक रिसोर्स हैं, ही गॉट एन इंटरव्यू अरेंज्ड विद Amazon IoT डिपार्टमेंट। तो उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के हमारे साथ, हमारी कंपनी में काम करके जो सीखा, उसके बिहाफ पे ही वॉज एबल टू लैंड एन इंटरव्यू विद अ कंपनी इन द US। और आप सबको पता है Amazon का इट्स अ लार्ज कंपनी। तो तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। It's just about how excited you are about the field and how passionate you are about this area. जी वर्दा, बैक टू यू। अच्छा सर, क्लाउड से मुझे याद आया, here's an exciting tidbit for all aspiring tech enthusiasts. क्या आप जानते हैं कि AWS ने फ्री डील्स की रेंज ऑफर की है जो आपको अपने क्लाउड जर्नी शुरू करने में मदद कर सकती है। प्लस माइक्रोसॉफ्ट एजर भी स्टूडेंट्स को $100 का क्रेडिट दे रहा है ताकि आप उनकी पावरफुल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकें, एंड यू कुड यूज दैट फॉर IoT too. तो इसमें ऐसी क्या खास बात है मुताहिर? डू यू नो दैट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अपने नए कस्टमर्स और स्टूडेंट्स को 90 दिन, आई मीन 90 डेज के लिए $300 का क्रेडिट दे रहा है, और ये ऑफर आपको IoT की दुनिया में घुमाने के लिए परफेक्ट है। लाइक बाबर आजम से डाटा बहुत है। So, moving on, is there a particular area within IoT that's seeing significant growth or demand for the new talent? जी बिल्कुल। उससे पहले मैं कहूँगा, मुझे गूगल की ऑफर का नहीं पता था। आई थिंक आई शुड गो एंड साइन अप स्ट्रेट अवे। तो थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो। जी, तो आपने सवाल किया अबाउट a certain area. So here I would like to quickly switch to, I just want to show कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, because I want to give, मैंने बहुत सी एग्जांपल्स दी आपको, पॉसिबिलिटीज़ का बताया, लेकिन I actually want to show you कि हम क्या कर रहे हैं और एक्टिवली क्या कर रहे हैं। और ये वो एरियाज हैं IoT के where we are generating business, हमारे clients हैं इस एरिया में, and we're already serving this. तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ रखी हैं, मैं वो क्विकली दिखाता हूँ। इसमें एक कार की डैशबोर्ड, आपने देखा होगा आजकल गाड़ियों के जो डैशबोर्ड हैं उनमें इट्स नॉट वन पीस, एक पीस तो पीछे बड़ा सा होता है प्लास्टिक का, लेकिन उसके ऊपर आजकल वो शाइनिंग वाला वो लगता है, और फिर नीचे डिफरेंट, यानी कि इट्स अबाउट कम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू प्लास्टिक पीसेस, उसके साथ मिलके फिर एक कार का डैशबोर्ड बनता है। तो हमें एक कस्टमर ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा ये जो लेबर इसको जो सेट करती है ना, अक्सर उसमें गलतियाँ कर जाती है, और जब वो गलती करती है तो जो डैशबोर्ड के जो पार्ट जब फिट होता है ना, तो वो उसमें चांसेस हैं कि वो जब गाड़ी बन के चली जाएगी कस्टमर के पास, और उसमें अगर खड़खड़ होगी तो कस्टमर एंग्री होगा तो रिकॉल आएगी, और दैट्स इट्स अ होल क्वालिटी इशू। तो हमने फिर वी गॉट एंगेज विद दिस कस्टमर इन स्कॉटलैंड। तो मैं उसकी छोटी सी एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट लेट मी पुल दैट अप।
So I will try to see if just bear with me while this video is loading. This could be the problem with my internet. जी वीडियो में इसमें प्ले नहीं हो रही, so I apologize for that. बट मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, ये जो कैमरे का व्यू है, इफ आई कैन जूम दिस अ लिटिल बिट, ये एक लेबर है, ये नीचे खड़ा हुआ है एंड यू कैन सी हिज हैंड्स, और ये ऊपर से हमने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है. सो ये डैशबोर्ड का पार्ट अपने सामने रखता है और सीरीज ऑफ एक्शंस करता है. सीरीज ऑफ एक्शन से मुराद है उसने इनगोट्स लगाने हैं, उस पर उसने एक साइड पे स्क्रू लगाना है, उसने एक दो स्टिकर्स लगाने हैं. जब ये सारे काम वो कर लेगा तो हमारा सामने एक टैबलेट लगा हुआ है जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग, ये लाइव कैमरा मॉनिटर कर रहा है. उसके पीछे मशीन लर्निंग चल रही है, ट्रेन एल्गोरिदम है जो इसके सारे मूव्स को. ग्रीन लाइट इन द फ्रंट ऑफ हिम, ग्रीन लाइट का मतलब है ठीक है, वो उसको पार्ट को आगे रख देता है. वी शो रेड लाइट कि भाई तुमने कुछ मिस कर दिया. जैसे ही उसको हम रेड लाइट चलती है ना, वो एक बार दोबारा से गौर से देखता है, यार मैंने क्या मिस किया, ओह आई मिस समथिंग. फिर वो फौरन उसको ठीक करता है. वी कन्वर्ट द रेड बैक टू ग्रीन एंड देन ही मूव्स ऑन. तो ये हमारा लाइव कस्टमर है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू एन एग्जांपल. इस केस में IoT का सेंसर क्या है, डिवाइस क्या है? इट्स अ कैमरा. इट्स अ प्लेन HD कैमरा. No no advanced electronics attached, but what the core part is the video analytics and machine learning that is happening behind the scenes. अच्छा, इसके साथ मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ. वी आर डूइंग एक मीट मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ वी आर वर्किंग, और इनका हम IoT में क्या कर रहे हैं. अब एक एग्जांपल एक मार्केट में आई जहाँ पे रॉन्ग लेबल प्रोडक्ट का रॉन्ग मीट पे लग गया. अब आप इमेजिन करें कि बीफ, अगर बीफ के कीमे के वो पैक चल, दिस पर्टिकुलर कस्टमर, उसने बीफ के ऊपर लैम का स्टिकर लग गया गलती से और वो मार्केट में चला गया मीट सारा. मार्केट में क्या चला गया, द कस्टमर रियलाइज्ड, कस्टमर ने कंप्लेन की, इमीडिएट सुपरमार्केट टुक एक्शन. उन्होंने उस कंपनी को बुलाया, 1.8 मिलियन पाउंड उनको फाइन किया और उन्होंने कहा कि अपना सारा प्रोडक्ट उठाओ और यहाँ से ले जाओ. ठीक है. इवेंचुअली दैट कंपनी हैड टू फोल्ड. एक छोटी सी स्टिकर की गलती पे द कंपनी वेंट बैंकरप्ट एंड दे हैड टू क्लोज द बिजनेस. सो रॉन्ग प्रोडक्ट का लेबल, रॉन्ग खाने की चीज़ पे लग जाना इज सिग्निफिकेंट. खास तौर पे पाकिस्तान में एलर्जीज मेरे ख्याल में गालिबन उस परसेंटेज से नहीं है जिस तरह से कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में हैं. ये खासतौर पर नट एलर्जी बच्चों को हो जाती हैं. जो सीरियस नट एलर्जी वाले बच्चे हैं, अगर वो एक पीनट भी खा लें तो देयर ब्रेथ कैन चोक. तो आप इमेजिन करें कि एक प्रोडक्ट है जिसमें नट्स इन्वॉल्व हैं और अगर गलत स्टिकर लगा दिया आपने, उस पर लिख दिया कि इसमें नट्स नहीं है और किसी बच्चे ने कंज्यूम कर लिया, तो दिस कुड बिकम फेटल. तो छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, पर ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो हम इस कस्टमर के साथ जो ये मीट इसका जो चलता है असेंबली लाइन में, उसके ऊपर जो मशीन स्टिकर्स लगाती है, हम वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं. एक्सपायरी डेट, उसकी जो वेरियस डिटेल है, क्या सही प्रोडक्ट पे सही लेबल लग रहा है कि नहीं. ये एक बेसिक सा एक सोल्यूशन है, बट इट्स वेरी वेरी क्रूशल फॉर द बिजनेस जो हम अभी कर रहे हैं. एक छोटी सी एग्जांपल है फूड एंड बेवरेज की. वी हैव अ कस्टमर इन डैलस इन अमेरिका जो बेसिकली इस तरह का बॉटलिंग प्लांट है उनका. अब वो बॉटलिंग प्लांट में बिफोर वी पुट आवर सिस्टम इन, उनको आइडिया ही नहीं था कि कितना उनका लिक्विड ज़ाया हो जाता है, कितनी इनएफिशिएंसीज हैं. बहरहाल वी आर मॉनिटरिंग देयर इंटायर लाइन नाउ, और उसमें ना सिर्फ प्रोडक्ट्स की गिनती हो रही है कि कितना प्रोडक्ट बन गया है, उसकी क्वालिटी भी चेक हो रही है कि क्या वो राइट लेवल पे है, राइट नंबर ऑफ बॉटल्स आर गेटिंग पैक्ड, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. That is also very exciting project that we are working on. This is one of my favorites. I was actually in this factory a few months ago. ये यूके में एक फैक्ट्री है जो ब्रेड्स बनाती है. तो जब हम वहाँ गए थे, और वो एक बहुत बड़ा ओवन है जिसमें से ये सैकड़ों ब्रेड्स बाहर आती हैं.
the smell in the factory was amazing. मेरा दिल कर रहा था मैं वहीं 3-4 breads पकड़ लूँ. But it's interesting कि how ineffective their quality control was. इन्होंने 2 बंदे खड़े किए हुए थे जो continuously breads की shape देख के, color देख के randomly breads को नीचे फेंकी जा रहे थे. और ऐसा भी होता था, मुझे बंदे ने बताया उनके, कि अगर वो लेबर जो बंदा है वो मोबाइल पे लग गया है, उसका फ़ोन आ गया, तो उसने 2 मिनट ज़ाया कर दिए. अब वो एक स्टैंडर्ड सा बना हुआ है कि जी 30% ब्रेड हमारी ज़ाया होती होती है. एक उन्होंने एक अजीब सा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है फैक्ट्री में. अब वो लेबर को फिक्र लग जाती है, यार मैंने 5 मिनट तो फ़ोन पे लगा दिए हैं, तो ब्रेड अगर मैंने ना ज़ाया की तो मुझे मेरी शामत आ जाएगी. तो वो फिर क्या करता है, वो रैंडमली सही वाली ब्रेड भी नीचे फेंकना शुरू कर देता है. ठीक है ना, वो सारी वेस्ट में डालना शुरू कर देते हैं. सो मेनी इनएफिशिएंसीज. कुछ वो ख़राब ब्रेड को जाने देता है, कुछ वो फेंक देता है. सो वी रिप्लेस्ड ऑल ऑफ दैट इनएफिशिएंसी विद द बेसिक विजन. और विजन से हम उसका साइज, उसका कलर, उसकी काउंट, क्या वो ठीक है कि नहीं. और इंटरेस्टिंगली IoT के थ्रू वी सेंड अ मैसेज टू अ रिजेक्टर, जो रिजेक्टर फिजिकली ब्रेड को एयर के साथ जोर से प्रेशर मार के ब्रेड को नीचे जो उनकी बिन बनी हुई है उसमें वो डाल देता है. So these are lots of practical examples around IoT which we are currently working on. I just wanted to share those with you just to give you an idea. Okay, so with that, I think we'll move to our next topic, which is around the architecture. Imran, can you please give me 1 second here? So we've had like approximately 20 different questions. So stay tuned. A lot of exciting questions. So stay tuned. We will have a QA session once the presentation is over. So I think I've just got these very high level 3 slides and I'll go through them quickly so that we can spend more time on the questions. So एक high level सी बात कर लेते हैं architecture की. So in the architecture of a typical IoT application, we have a sensor layer. अब सेंसर्स क्या हैं, जो एक्चुअल चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है. ये सेंसर जो हैं कनेक्ट होते हैं छोटे से डिवाइस के साथ. वो डिवाइस इन सेंसर्स का डेटा ट्रांसमिट करता है टिपिकली एक गेटवे को. गेटवे, अब आप इमेजिन करें, एक ज़रा अपने दिमाग में पिक्चर लाएं कि एक फैक्ट्री है जिसमें 10 मशीनें हैं. उन 10 मशीनों में 10 छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हुए हैं और वो उन मशीनों का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली रेडियो सिग्नल्स के साथ एक गेटवे सर्वर को दे रहे हैं. ये गेटवे सर्वर भी एक कंप्यूटर है जो फैक्ट्री में लगा. तो बहुत सा डेटा इकट्ठा हो रहा है जो एक गेटवे कंप्यूटर पे जा रहा है. दिस गेटवे कंप्यूटर इज देन रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट दिस डेटा फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है ना. अब इसकी ट्रांसमिशन और इसकी प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास IoT की कुछ क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं. उसकी अभी छोटी सी बात कर लेते हैं. जब ये डेटा ट्रांसमिट हो जाता है और आपके पास अवेलेबल हो जाता है, देन यू हैव टू प्रोसेस दिस डेटा एंड देन फ्रॉम दैट प्रोसेस डेटा यू सर्विस इट आउट थ्रू मोबाइल डिवाइस, थ्रू अलर्ट. किसी को SMS चला गया, किसी को मैसेज चला गया. ठीक है ना. तो दीज आर वेरी बेसिक लेयर्स ऑफ एन IoT एप्लीकेशन. इसी प्रोसेस को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास डेटा को कैप्चर करने के लिए चीज़ें हैं. इसमें आपके पास डिजिटल इनपुट्स, एनालॉग इनपुट्स हैं और विजन. मैंने आपको कैमरे की एग्जांपल दी कि आप कैमरे से भी चीज़ों को इनपुट कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ डेटा को इनपुट ले सकते हैं, फ्रॉम वेरियस एप्लीकेशंस. दिस देन गेट्स, जो मैंने अभी रेडियो की बात की ना, कि ये डेटा किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी या वायरलेस से गेटवे में चला जाता है. इसके लिए जो इंडस्ट्री में चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वाईफाई तो देखें हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, ये फैक्ट्रीज में इतना इफेक्टिव नहीं होता. हमारा जो प्रोडक्ट है, हमने बिगिनिंग में आज से 9 साल पहले वाईफाई बेस्ड ही प्रोडक्ट स्टार्ट किया था. एक्चुअली इट वाज लिटरली ऑन अ रास्पबेरी पाई के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड था जो वाईफाई के साथ हम कम्युनिकेट करते थे. बट वी रियलाइज्ड कि फैक्ट्रीज में नॉइजी इन्वायरमेंट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ये नहीं चलता. तो देन वी वेंट बैक टू, apologies, the slide have moved on. I'll go back to my slide here. Then we actually moved back to Zigbee based radio protocol. Zigbee की जो रेंज है वो 2 किलोमीटर्स तक है. इसी तरह से LoRaWAN, जो कि अब ज़्यादा प्रोटोकॉल Zigbee से भी ऊपर जा रहा है मार्केट में अडॉप्शन में. Zigbee, LoRaWAN, these are basically रेडियो प्रोटोकॉल जो दूर तक डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं और ये हार्श इन्वायरमेंट्स को भी
में भी चल जाते हैं, जहाँ पे बहुत नॉइज़ है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, हाई इलेक्ट्रिकल वॉल्यूम्स हैं, जैसे फैक्ट्री इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पे भी ये सक्सेसफुली चल जाते हैं। ठीक है, और ये सेलुलर तो है ही है, 4G बेस्ड कम्युनिकेशन, एंड देन ब्लूटूथ बेस्ड, जो जैसे हमने वो बल्ब की एग्जांपल ली थी। डेटा प्रोसेसिंग में एक ही चीज़ आती है विच इज़ हाई वॉल्यूम इंजेक्शन। अभी इंटरेस्टिंगली वर्दा ने और मुताहिर ने बताया कि गूगल और अमेज़ॉन और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऑफर कर रहे हैं आपको सीखने के लिए रिसोर्सेज। आप यहाँ पे आईओटी की कुछ टेक्नोलॉजीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आईओटी हब एक टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद ये है कि वो हज़ारों सेंसर से डेटा इंजेस्ट कर सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, हमने कहा एक बल्ब एक फ़ोन। अब आप इमेजिन करें, थाउजेंड्स ऑफ वैन्स, हज़ारों वैन्स हैं जो कंटिन्यूसली डाटा सेंड कर रही हैं एक ही टाइम पे। तो अब आपके ध्यान में एकदम आएगा, ये मैं इतना बड़ा सर्वर कहाँ से लाऊंगा जो इतना डाटा इकट्ठा करेगा। द गुड न्यूज़ इज़ यू डोंट हैव टू डू दैट। हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ बनी हुई हैं, अवेलेबल हैं, अवेलेबल एज अ सर्विस, आप उनको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो अज्योर की जो आईओटी हब है, दिस इज़ डिज़ाइंड, माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करता है कि ये 2 मिलियन मैसेजेस पर सेकेंड इंजेस्ट कर सकती है, जो उसकी सर्टन, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। ठीक है जी, तो 2 मिलियन मैसेजेस पर सेकेंड, इट्स अ हाई लार्ज वॉल्यूम। तो आपको इतना बड़ा सर्वर कंप्यूटर बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज़ द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, उनको इस्तेमाल करें अपने एप्लीकेशन में और उनको लेके चलें। और इनकी प्राइस काफ़ी चीप है, यू कैन फाइंड आउट, या हम अपने फॉलो ऑन सेशन में इनकी थोड़ी सी डिटेल में भी जाएंगे। डेटा विजुअलाइजेशन, अच्छा अब प्रोसेसिंग, एक बार आपने डेटा ले लिया, अब आप उसको मशीन लर्निंग कर रहे हैं, आप उसमें डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपने कहीं स्टोर कर दिया, अब उसको विजुअलाइज कराने के लिए यू हैव अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक पावर बीआई, टैबलो, एंड देन यू कैन हैव योर ओन कस्टम वेब डैशबोर्ड्स। पावर बीआई भी फ्री है, आप ये एक्सेल की तरह आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाती है, और इस पर आप बड़ी मज़ेदार किस्म की विजुअलाइजेशन बना सकते हैं डिफरेंट किस्म के डेटा सोर्सेज के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट पावर बीआई एम्बेडेड इस्तेमाल करता है, हमारे कस्टमर्स जो रिपोर्ट्स देखते हैं, दैट इज़ पावर्ड बाय पावर बीआई बिहाइंड द सीन्स, तो इट्स प्रीटी पावरफुल टूल। ये एक स्लाइड है बड़ी ओवरवेलमिंग सी, मैं बिल्कुल इसमें ब्रीफ सिर्फ 2 मिनट लूँगा इस पर। ये सिर्फ ये बता रही है वो जो 4 लेयर्स हमने आर्किटेक्चर के बोले हैं, फिजिकल लेयर है, कम्युनिकेशन लेयर है, डाटा को स्टोरेज है, और उसकी विजुअलाइजेशन है। इसमें बहुत सारे चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है ना, हम लोगों ने जब 9 साल पहले स्टार्ट किया था इस प्रोडक्ट को बनाना, हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। कुछ इंटेल के 1-2 बोर्ड थे, आर्डुइनो तो था तब, और रास्पबेरी पाई वगैरह थे, लेकिन ये जिगबी, रेडियो प्रोटोकॉल्स, लोरावैन बिल्कुल प्री मेच्योर था। लोरावैन की अभी एक्सपेरिमेंट्स ही चल रहे थे। जिगबी थोड़ा सा मेच्योर उस वक्त हुआ था। तो बहुत से फ्रीक्वेंसीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स 9 साल पहले दे वर क्वाइट वीक, क्वाइट लो। अभी यू हैव दिस, यू गाइस हैव द अपॉर्चुनिटी कि कॉस्ट ऑफ ये जो सेंसर्स की कॉस्ट, ये बोर्ड्स की कॉस्ट बहुत नीचे आ गई है। क्लाउड में जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उनकी कॉस्ट बहुत नीचे आ गई है। तो एक एप्लीकेशन को बनाना, इसको सीखना, इवन एक एप्लीकेशन को बना के कमर्शियल लेके जाना, इट्स मच मच मोर वायबल आजकल के टाइम पे। तो आई थिंक यू गाइस आर क्वाइट लकी इन टर्म्स ऑफ योर टाइमिंग कि ये जो स्टैक है ये बेहतर से बेहतर ऑप्शन, ओपन सोर्स कह लें, नॉन ओपन सोर्स की तरफ चले जाएं, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है जी, सो अगेन some of the details are not part of the scope of this session, but this just gives you a very brief idea of के कितना कुछ अवेलेबल है आप लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। और आपने ये सब नहीं सीखना, आप लोगों के सीखने के लिए मैंने इसीलिए यहाँ पे एक स्लाइड बनाई है which I'll quickly show you here. Sorry, just give me 1 second. I'm just trying to pull it up. This one. इसमें what I'm trying to say here is कि आपने कहीं से स्टार्ट लेना है तो don't get overwhelmed with इतना बड़ा चार्ट और उसमें इतनी लोडेड टेक्नोलॉजीज। तो डिवाइसेस में आई वुड से कि एज अ बिगिनर आप सिर्फ रास्पबेरी पाई, आर्डुइनो की तरफ जाएं और इसी पे प्रोग्रामिंग करें। ये आपको हाल रोड से भी मिल जाएंगे, पहले नहीं मिलते थे, पहले बाहर से मंगवाने पड़ते थे, अब मिल जाते हैं। ठीक है, बेसिक पाइथन, और इस पे इन पे लिनक्स जो है, रास्पबेरी पाई पे लिनक्स चलता है, और बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ आप अपना डिवाइसेस वाला जो स्टैक है उसको कवर कर सकते हैं। सिमिलरली बैकएंड पे अगर आप जाएंगे
तो अभी वर्दा ने और मुताहिर ने बताया कि अज्योर और गूगल वगैरह अच्छी ऑफर दे रहे हैं। ये फ्री रिसोर्सेज हैं, इनको इस्तेमाल करें। APIs आप C# पे लिख सकते हैं, डेटाबेस मोंगो भी फ्रीली अवेलेबल है। तो ये बहुत एक छोटा सा टेक्नोलॉजी स्टैक हमने यहाँ पे लिखा है जो आपको IoT की एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाने में काम देगा विदाउट गोइंग टू मच डायरेक्शंस। आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। फ्रंट एंड की हमने बात कर ली कि पावर BI या रिएक्ट में आप या फ्लटर में मोबाइल ऐप बना सकते हैं। ठीक है जी। बैक टू यू फॉर, आई थिंक वी कैन टेक सम क्वेश्चंस नाउ। Yes, sir. Thank you so much for this detailed overview. Here's a fun fact for our audience. The term Internet of Things was coined by Kevin Ashton in 1999 while he was working at Procter & Gamble. It's the same company that owns Safeguard and Pantene and tons of other products. For that, he's known as the inventor of Internet of Things. It's quite a mouthful, actually. So secondly, the question that I had was कि मेरा एक दोस्त है who's trying to get into the delivery business. तो उसको IoT से क्या मतलब? अच्छा, डिलीवरीज में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी एक आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस इन जर्मनी, और वहाँ पे डाइमर जो मर्सिडीज का पेरेंट ग्रुप है उसने प्रेजेंटेशन दी अबाउट देयर फ्यूचर वैन्स। और वो प्रेजेंटेशन द फ्यूचर वैन्स की थी, बट दे ऑलरेडी हैव देम इन डिज़ाइन। वो अभी मार्केट में नहीं आई, बट यू नो दे हैव प्रोटोटाइप्स रेडी। उन द वैन्स विच मर्सिडीज आर डिज़ाइनिंग, उसमें ऐसा है कि ड्राइवर जाएगा एंड ही विल जस्ट पार्क आउटसाइड house. The van back doors will automatically open. A drone will automatically pick up the package, drop it in front of the house, maybe potentially do an electronic ring or something, and then the drone will come back. So वो जो driver है is no longer have to come out of the van, pick up a heavy package, कुछ उसको करने की जरूरत नहीं है, automatically चीज़ें move हो रही हैं। बल्कि I think in America, Amazon has even tried doing shipments using drones. But these are part of the vans themselves built into it. So yeah, quite interesting. Let's see कि ये पाकिस्तान में कब आती है। But then see, this opens the opportunity. अगर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ लेट आ रही है या बाद में आ रही है, it opens up avenues for us to maybe provide a cheaper and you know timely solutions to these problems. Thank you so much for your Back to you overview, for sir. further questions. Yes, sir. I know the audience might be very thrilled to have their questions answered. Let's move on to them. We have some burning questions from our viewers. From the top of my head, the one I'm viewing right now is Mr. Hassan Khan is asking, how does IoT manage the security as extensive connectivity make the systems susceptible to cyber attacks? Very nice. Sir, cyber attacks is controlled because it's all controlled by devices and it's on the internet basically. देखिए 100% सिक्योरिटी इज किसी भी सिस्टम में जब आप बात करेंगे सिक्योरिटी, यू नो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ। अब आप हमारा बिजनेस देखें, वी डिप्लॉय आवर सॉल्यूशंस इन द फैक्ट्रीज। हम फैक्ट्रीज में अपना सोल्यूशन लगाते हैं, अपना हार्डवेयर मशीनों के साथ अटैच करते हैं। यू कैन इमेजिन इफ समबडी कैन हैक इनटू आवर सिस्टम, दे कैन पोटेंशियली कंट्रोल द फैक्ट्री एनवायरनमेंट, दे कैन कंट्रोल द मशीन्स, और मशीन्स आर क्वाइट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव एसेट्स। उनको ख़राब कर सकते हैं, उनकी चीज़ों को छेड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सो वी हैव टू बिल्ड, जब हमने प्रोडक्ट बनाया था तो वी टुक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ थिंग्स इन द सेंस कि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो हमारा नेटवर्क है, जैसे भी मैंने बताया कि हमारे डिवाइसेस रेडियो फ्रिक्वेंसी से बात करते हैं, हमारे गेटवे में, हमारा गेटवे जो है वो क्लाउड से बात करता है। तो देयर वर सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें उनका ख्याल रखना पड़ता था फ्रॉम डे वन। तो ये अक्सर ये होता है एप्लीकेशंस में, प्रोजेक्ट्स में। आई मीन आई वाज पार्ट ऑफ, मैंने कुछ अपने करियर में एमिरेट्स बैंक और कुवैत नेशनल बैंक के लिए भी काम किया है। और इवन बैंकिंग एनवायरनमेंट में होता ये था कि एप्लीकेशन बन गई और बाद में ख्याल आ रहा है कि यार इसके ऊपर ना आप सिक्योरिटी को थोड़ा सा छिड़क देते हैं नमक की तरह। तो ऐसा चलता नहीं है। दिस हैज़ टू बी बिल्ट एज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। तो हमें हमारा जो कोर चीज़, मैं एक चीज़ आंसर करूँगा जिसका हमने ख्याल रखा था, वो था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी अलाउड टू कम इन टू द फैक्ट्री। तो हमने सिस्टम में सारा का सारा आउटबाउंड बेस्ड कम्युनिकेशन डिज़ाइन की, जिसमें
हमारा सिस्टम तो फैक्ट्री से डेटा लेके बाहर सेंड कर सकता है, बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सकता। हम भी अगर चाहें तो हम बाहर से या क्लाउड पे बैठे हुए अंदर फैक्ट्री में कुछ सेंड नहीं कर सकते, कुछ इनिशिएट नहीं कर सकते, कुछ रिमोटली एक्टिव नहीं कर सकते। इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखा है। तो दिस इज जस्ट वन वन एग्जांपल। जी। Thank you for answering, sir. Sir, I have another question, sir. Mr. Fahad is asking, do you think it's wise to start an IoT business in 2024? And I would add to this with another question from our viewer, कि AI or ML का boom है. Everybody knows about this. Generative AI has almost taken over the world. So what will happen if IoT and AI collapse, or what if IoT is made using AI? तो उनका ओवरलैप आप काइंडली डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि इज दिस द राइट टाइम। आई मीन आई वुड से कि यू नो इट कांट बी अ बेटर टाइम गिवन द कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर, द कॉस्ट ऑफ द क्लाउड। ये जितना जितना चीज़ें नीचे आती जा रही हैं और ईज होते जा रही है। अभी भी ये आपके सामने ये मेरा स्लाइड डेक है। इन बेसिक टेक्नोलॉजीज को आप लेके एक ज़बरदस्त किस्म का फुल ब्लोन IoT का सोल्यूशन ऑफर कर सकते हैं। और अगर आप देखें ये ML, AI, दे ऑल बेसिकली डिपेंड ऑन डेटा। ठीक है, जब तक डेटा नहीं आएगा, कहीं पड़ा नहीं होगा, उस पर वो क्या करेंगे, राइट? सो IoT इज़ एन एनेबलर, वो कैप्चर करेगा। अब जैसे ह्यूमन बॉडी की हमने बात की, अब ह्यूमन बॉडी में मेरा ग्लूकोज लेवल क्या है, इस पे AI क्या कर सकती है जब तक वो ग्लूकोज लेवल का डेटा नहीं उसको मिलेगा। सो दिस इज वेयर सिमिलरली फॉर agriculture farms, similarly for vehicles, all these different places where you have the potential to capture the information, you become जहाँ पे भी आपको लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। और पाकिस्तान की अक्सर बात होती है हमारे एनवायरनमेंट की, और हम अक्सर बातों में, गुफ्तगू में, आपस में नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। यार इसमें यहाँ पे तो इस मुल्क में ये भी मसला है, इस मुल्क में ये भी मसला है। इंटरेस्टिंगली हर मसले को आप लेके ना कहीं कागज़ में लिख लें और उसके नीचे आप देखेंगे कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ बिजनेस, देयर इज पोटेंशियली मे बी एन IoT बिजनेस बिहाइंड वन ऑफ द इश्यूज दैट यू आर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड। तो जितने मसले हमारे मुल्क में हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतने ही बिजनेसेस क्रिएट हो सकते हैं। सो आई वुड से बाय ऑल मींस दिस इज द राइट टाइम। अच्छा, अब बात दूसरी तरफ आते हैं, विच इज़ AI, द एलिमेंट ऑफ जनरेटिव AI और IoT। अगेन द जनरेटिव AI डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। और आई थिंक जनरेटिव AI में ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड है पिछले सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन से। अभी ChatGPT 4 में उन्होंने ना बहुत से सेफ गार्ड्स बिल्ड किए हैं। आप लोग GPT 3 यूज़ कर रहे थे, अब GPT 4 यूज़ करेंगे तो बहुत सी चीज़ें GPT 4 से अगर आप जो 3 से करवा पा रहे थे वो आप 4 को कोई ज़रा सा भी उल्टा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो वो आंसर दे देता है कि सॉरी आई कांट डू इट, एंड दैट आंसर सॉरी कम्स बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा सेफ गार्ड। अब इमेजिन करें एक फैक्ट्री में आपका चल रहा है कोई चीज़ और आपने अगर सोल्यूशन ही ऐसे बिल्ड किया है कि इनबाउंड कोई डायरेक्शन में अननेसेसरी कम्युनिकेशन ट्रैफिक नहीं आ सकती। सो AI, जनरेटिव AI ये अगर कोशिश करेंगे तो ये भी नहीं आ सकते। अगर एक हैकर नहीं एंटर हो सकता, सिमिलरली दे कांट एंटर। अगर आपने अपना सिस्टम डिज़ाइन ऐसे किया है कि वो इट्स ओपन टू कम्युनिकेशन, इट्स ओपन टू सर्टन वल्नरेबिलिटीज, तो either it's whether it's a human hacker who's trying to get in or whether it's an AI bot that is trying to get in, they will be able to get in. So you need to just make sure आप अपना environment, अपना solution penetrated test करके रखें। और obviously if you are going into generative AI तो make sure करें कि वो safeguards आप build करें safety के वाले जो आजकल industry अब कर रही है। जी। Thank you, sir. Sir, another question. Ms. Iman is asking, what are some common challenges you face when working on IoT projects? And I would like to add to this, क्या आप इसमें अपने personal stories relate कर सकते हैं? Something you faced while working in IoT? हमारे पास इंटरेस्टिंग चैलेंजेस आए थे। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ बड़े मज़े की। हम लोगों ने एक टाइम आया हमारी, को हमने फैक्ट्रीज के साथ पिछले 9 साल से हम काम कर रहे हैं। सो वी जनरली लुक एट देयर प्रॉब्लम्स और हम कोशिश करते हैं कि उन पे सोल्यूशन देने की कोशिश करें। तो एक प्रॉब्लम जो हमें नज़र आई थी वो थी लेबर रोटा इंचार्ज। रोटा जो होता है ना, रोटा होता है कि एक मशीन है, उस पर 4 घंटे एक लेबर ने काम करना है, 4 घंटे के बाद अहमद ने काम करना है, अहमद के बाद यूसुफ ने काम करना है। वो सारा लिखा होता है चार्ट पे और उसकी ट्रैकिंग हो रही होती है। अब अगर अहमद
10 मिनट लेट आया है या यूसुफ ने 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए हैं, तो उसकी ट्रैकिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो वो सारी रिकॉर्डिंग होगी तो होगी, अगर मेमोरी ना हो सकी तो कैसे करेंगे? हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, हम कैमरा लगाते हैं। हमने फेशियल रिकग्निशन किया और हमने लोगों को रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया और उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग मशीनों पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। वी वेंट लाइव विद इट। अच्छा, सिस्टम 2 दिन चला और तीसरे दिन उन्होंने कहा कि जी मशीन पे लेबर ट्रैक नहीं हो रही, क्या मसला है? हमें भी समझना है। तो अब असल में चूंकि हमने वो सिक्योरिटी वाला एलिमेंट है, हम लोग ने लाइव कैमरा की फीड इवन अपनी टीम के पास नहीं रखी हुई। हम नहीं देख सकते कि फैक्ट्री में बाहर से कि क्या हो रहा है। सो वी वेंट इन, मी एंड माय पार्टनर, आई रिमेंबर वी वेंट इनटू द फैक्ट्री, और हम उस मशीन के पास गए जहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ था। और हमने देखा कि वो किसी ने इतनी जहमत की कि वो बड़ी सीढ़ी लाया और उसने हमारे कैमरे का मुंह जो है वो छत की तरफ कर दिया। और सो दे डिडंट वांटेड अस टू लुक एट देम बेसिकली। उनको आइडिया हुआ, लेबर ने मिलकर डिसाइड किया कि भाईजान ये हमारा एक्चुअल टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको तो जरा आगे पीछे करें। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो हमें रेजिस्टेंस आया। फिर हमने रियलाइज़ किया व्हेन वी वेंट टू जर्मनी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियंस हैं बहुत ज़्यादा। कहीं पे भी जहाँ आप फेशियल रिकग्निशन की बात करेंगे ना, कि चेहरा आपने रिकग्नाइज किया और उस पर कुछ एक्शन किया, वहाँ पे यूनियंस हैं, स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं, और वो बाइकआउट कर देते हैं या वो नहीं लगने देते। तो हमने अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा ट्यून कर लिया। मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाई डैशबोर्ड वाली, उसमें लेबर के हाथ नज़र आ रहे हैं और उसके एक्शन नज़र आ रहे हैं। वो कौन खड़ा हुआ है या वो खड़ी हुई है, वी डोंट नो, एंड वी मूव्ड अवे फ्रॉम दैट। ये हमारा एक लेसन लर्न था कि फेशियल रिकग्निशन में ह्यूमन अडॉप्शन के काफ़ी चैलेंजेस हैं, स्पेशली इन यूरोपियन मार्केट। सो वी मूव्ड अवे फ्रॉम इट। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। जी, बैक टू यू। That was very interesting to hear. सर यही सुनते सुनते मेरे जहन में एक और ख्याल आया। सो व्हाट अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, या जो हमारी समुद्र में जो शार्क है जो हमारा इंटरनेट खा जाती है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रोन डिलीवरी कर रहा है एंड द इंटरनेट जस्ट गोज आउट फॉर सम रीजन, फॉर बिकॉज ऑफ अ सोलर फ्लेयर और अ हीट वेव और एनी रीजन व्हाटसोएवर, तो क्या वो नुकसानदेह नहीं है, स्पेशली फॉर द ह्यूमंस अंडरनीथ द ड्रोन? जी, अब देखिए ना, इसमें यू नीड टू बिल्ड सर्टन सेफ गार्ड्स। पहले बात करते हैं थोड़ी सी, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, तो इसमें ये आप पिक्चर में देखेंगे बॉटम लेफ्ट पे मॉनिटरिंग फॉरेस्ट्री आ रहा है। और आप लोग, हम लोग सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारे पहाड़ी इलाका जात में या इवन दूसरे इलाका जात में जो डिफॉरेस्टेशन का एक सिलसिला है, वो अभी भी कंटिन्यूस है। ऑल्दो हमारे पूरा एक इदारा है जिसका काम ये है कि मॉनिटर करना कि कौन कितने दरख्त काट रहा है, कौन कैसे काट रहा है। लेकिन इवेंचुअली जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट ही होती है जो पेपर में दिखाया जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और आपने देखा आजकल सैलाब आ रहे हैं हमारे पहाड़ी इलाके जात में, और उन ज़्यादा सैलाबों की रीज़न भी ये है, ग्लोबल वार्मिंग से उसको लिंक किया जा रहा है। लेकिन वन ऑफ द रीजंस इज द डिफॉरेस्टेशन, कि वो जो दरख्त काटे जा रहे हैं सारे, वो जो पहाड़ हैं जिनमें दरख्त थे, वो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स दरख्त रोक लेते हैं। जब वो होंगे ही नहीं तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होगी। जब लैंडस्लाइडिंग होगी तो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ रिलेट्स ऑल ऑफ दैट। तो इस पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग जो है वो हो सकती है। मतलब मेरा जो यूके में, मेरा यूज टू लिव, मेरे गार्डन में एक दरख्त था और वो बहुत पत्ते झाड़ता था, बहुत ज़्यादा। मतलब आई रिमेंबर आई हैड टू, एक समर में मैंने 14 बोरियां भरी थी सूखे पत्तों की। तो मेरे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा इससे तो मैं जान चुका हूँ, इसको मैं कटवा देता हूँ। तो देन बट आई फाउंड आउट, मुझे काउंसिल से लेटर आ गया कि इस पे प्रिजर्वेशन ऑर्डर है, आप इसकी शाख को हाथ भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। सो यू हैव टू कैरी 14 बैग्स एवरी ईयर, डोंट इवन थिंक अबाउट टचिंग इट। एंड आई डिडंट थिंक अबाउट टचिंग। अगर मैं उसको काटता, उसकी शाख काट देता और कोई हमसाया मेरी शिकायत लगाता, तो इट्स जेल टाइम स्ट्रेट अवे। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है, हम इसको कर सकते हैं, हम प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स पे जा सकते हैं, बड़े बड़े दरख्तों पे प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स लगाए जाएं। इसका प्रोसेस बना हुआ है, इंटरेस्टिंगली हमारा इदारा है जो ये करता है। अब वो कितना इफेक्टिवली करता है, वी ऑल नो दैट। सो बट आई थिंक वी कैन डू अ लॉट हेयर इन डिफॉरेस्टेशन, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, ऑल यूजिंग ड्रोन्स एंड वेरियस IoT डिवाइसेस। तो ये एक पूरा एक एरिया बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। दूसरी आपने क्वेश्चन किया है शार्क्स का और वो वायर्स वाला। सो आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग। मेरे जहन में तो छोटा सा सोल्यूशन आता है कि वो आप कोई लगा के रखें जो मूवमेंट पे लाइट अमाउंट ऑफ
it's miles and miles of a wire, and how you can control with IoT. Potentially, you can do monitoring of the health of your signals and stuff like that. कि अगर वायर्स में कोई इरेगुलर चीज़ आना शुरू हो रही है कम्युनिकेशन में या उसमें उसकी लाइट में जो ट्रांसमिट हो रही है, मे बी इट्स एन अर्ली इंडिकेशन आप ले सकते हैं कि जिसमें कोई मसला है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ यू वुड सॉल्व दैट. अच्छा, आपने तीसरा सवाल आपका पार्ट ये था कि अगर डिसकनेक्टिविटी हो जाती है तो क्या करेंगे. अब देखिए ना, अब आप लोग अगर आप में से आपने किसी अगर आप मॉडर्न ड्रोन्स देखेंगे, पहले ड्रोन होता था कि अगर रेंज से निकल गया तो क्या, जैसे गुड्डी नहीं निकल गई हाथ से तो निकल गई, जिसके हाथ लग गई. तो पहले वाले इनिशियल ड्रोन्स के मॉडल भी ऐसे थे. अब तो वो है फाइंड योर वे होम, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. अगर वो रेंज से निकल जाता है ड्रोन आपके, तो उसके अंदर ये फीड किया गया है कि तुम्हारा अगर ट्रांसमीटर नहीं रिसीव हो रहा सिग्नल, तो ये जीपीएस लोकेशन है, ये तुम्हारा घर है. वो जो कि आप कॉन्फ़िगर करते हो उसको शुरू में इसके सेटअप में, वो जब गुम जाता है तो वो वापस घर आ जाता है बेसिकली. ठीक है ना. सो देयर आर सर्टन थिंग्स, ये सब ये डिसकनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन बिल्ड दीज सर्टन सेफगार्ड around various devices. जी, back to you. Yes, thank you so much, sir. We'll be extending our session for another 10 to 15 minutes to get our questions answered. एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है इमरान. Muhammad Abdullah Shakur is asking how to configure networking for an IoT device. I think maybe you can talk about some of the out of the box or off the shelf items which are present in the market. कि अगर किसी ने अपना एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट करनी है तो. जी, मेरे पास अगर आप देखें ना तो ऑफ द शेल्फ जो अवेलेबल हैं नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, ये आईओटी में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप टिपिकली जब हम सोचते हैं कंप्यूटर्स के बारे में तो एक वायर्ड नेटवर्क सा हमें सामने आता है. लेकिन हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें अब वैन्स हैं या गाड़ियों की आप ट्रैकिंग कर रहे हैं. गाड़ियाँ तो मोबाइल में घूम रही हैं हर तरफ. सिमिलरली अगर आप एग्रीकल्चर में आपने सेंसर लगाए हुए हैं तो आप उनसे तारें तो खींच के नहीं लेके जा सकते सेंट्रल सर्वर में. सो इन ऑल ऑफ दिस केसेस यू नीड सम सॉर्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी. ठीक है जी. अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपने देखना है कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ की है. ठीक है. अगर वो होम का सेटअप है, ऑफिस का सेटअप है, हमने भी स्मार्ट अप्लायंसेस की बात की, घरों में स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी, इस तरह की चीज़ें. तो देखें यहाँ पे तो रेंज के हवाले से ब्लूटूथ भी चल जाएगा और वाईफाई भी चल जाएगा. जहाँ पे आपने बात करनी है फैक्ट्रीज की, देन यू नीड टू लुक एट लाइक Zigbee, LoRaWAN. देन व्हेन यू कम टू लाइक वैन्स एंड मॉनिटरिंग कार्स जो बाहर चल रही हैं, देन यू नीड टू लुक एट सेलुलर. फिर आप सेलुलर में जाएंगे, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क में जाएंगे. अब इन सब नेटवर्क्स में की जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या स्टैक अवेलेबल है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है ना. बट एवरीथिंग इज अवेलेबल. तो आपने पूछा नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग में जैसे अब हमारा प्रोडक्ट Zigbee पे है तो Zigbee के टूल्स अवेलेबल हैं. उसमें सेंडर कन्फिगर हो जाता है और रिसीवर कन्फिगर हो जाता है. अच्छा, और मजे की बात है कि चिप सेम है. एक ही चिप है जो सेंडर बन जाती है और वही चिप है जो रिसीवर भी बन जाती है. तो आप इमेजिन करें हमारे सिनेरियो में हमने क्या किया हुआ है, जितने डिवाइस मशीनों पे लगे हैं वो सब सेंडर्स कन्फिगर्ड है और एक जो हमारा गेटवे है वो रिसीवर कन्फिगर्ड है. सारे सिग्नल उसको आ जाते हैं और वो फिर आगे से प्रोसेस कर लेता है. अब इनकी चिप्स, इनके बोर्ड्स, इनका सॉफ्टवेयर, ये सारे अवेलेबल हैं. ठीक है. वाईफाई सिमिलरली, वाईफाई तो आप अपने लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं, वो नेटवर्किंग का आपको आइडिया होगा. ब्लूटूथ आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, आप अपने हेडफोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ करते हैं. तो इन सब के जो है वो नंबर वन हार्डवेयर होता है, दूसरा उनका सॉफ्टवेयर. तो ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं. आपने ये डिसाइड करना है कि आपका जो IoT सोल्यूशन है उसमें कौन सी रेडियो टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगी. वो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दे दिए हैं. और इसकी कोर सिलेक्शन क्राइटेरिया रेंज है, कितना दूर चीज़ ने जाना है. तो उसके भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिए. जी. Final two questions. एक बड़ा interesting question है by a guy named Ravit. So he's asking he did recently graduated in electrical engineering and he was really interested in IoT but now is not finding a job and he sort of resorted to doing full stack development. तो थोड़ा सा अगर उस perspective से बता दें कि अगर आप
इंटरेस्ट है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है आईओटी का, और अगर फर्ज करो जॉब नहीं मिलती तो व्हाट आर द ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, अपवर्क वगैरह या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह का काम है अवेलेबल, व्हाट्स द एडवाइस दैट यू वुड गिव? 100%। तो मैं पहला मशवरा तो आपको दूंगा कि यू आर हेयर एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। आप ETL प्लेटफॉर्म हमने सेटअप किया है, इसमें हमने IoT को एक पूरी फर्स्ट क्लास कैटेगरी दी है। तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू रीच आउट। आप यहाँ पे आएँ, कम्युनिटी में इन्वॉल्व हों, और आपको यहाँ पे हम लोग सब गाइड करेंगे, आपको मशवरा देंगे। दैट्स वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ एब्सोल्युटली लाइक इरफान हैज सेड कि देखें, डिपेंडिंग अपॉन आप किस शहर में हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में, इस वक्त लाहौर में, इवन फैसलाबाद में एक कंपनी है। सो यू नो दे आर हायरिंग पीपल, और दे आर वर्किंग ऑन सर्टेन IoT बेस्ड टेक्नोलॉजीज। और इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑनलाइन थ्रू अपवर्क, तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एज ए फ्रीलांस डेवलपर आप काम पकड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आप थोड़ा सा सर्च करें ज़रा IoT के हवाले से, तो you will find that there's lots of people are looking for people to do certain jobs. और जो थर्ड थिंग मैं यही कहूँगा कि आप जो है, so we talked about हाँ जी, इन दो चीज़ों के साथ आप पहले स्टार्ट करें। बट आई थिंक इफ़ यू गेट इंगेज्ड विद आवर कम्युनिटी हियर, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, और एटलीस्ट गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। जी प्लीज़। थैंक यू। सो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस भी हैं बड़े एक्साइटिंग, आई हैव ट्राइड टू आंसर देम, लेकिन विल प्रॉब्ली टेक दिस लास्ट क्वेश्चन ताकि फिर प्लेटफॉर्म के हवाले से भी कुछ डिस्कशन हो जाए। सो वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि 2-3 लोगों ने मुख्तलिफ उसके फ्लेवर से पूछा है, बट आई थिंक द क्वेश्चन इज विच इंजीनियरिंग डिग्री इज द बेस्ट टू गेट इनटू IoT इकोसिस्टम। यानी कि वो पूछ ये रहे हैं कि जी, एक बंदे ने तो भी पूछा था कि मैं QA इंजीनियर हूँ तो क्या मैं IoT में आ सकता हूँ कि नहीं, तो इसको अगर हम हैंडल कर लें। जी बिल्कुल। तो ये देखें, और ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब आई डिड a CS डिग्री, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गालिबन एक कोर्स था सिर्फ फॉर आवर इंटायर CS डिग्री। तो जब हमने स्टार्ट में हार्डवेयर की चीज़ें देखना शुरू की, रेडियो प्रोटोकॉल्स की बातें देखना शुरू की, तो वहाँ थोड़ा सा फील हुआ कि यार ये एरिया है जो थोड़ा सा अननोन सा है। और बट वी ऑब्वियसली डिड सम R&D, सम रिसर्च। हम लोगों ने कुछ एक्सपर्ट्स को साथ साथ वगैरह मशवरा वगैरह किया, तो वी वर एबल टू देन ग्रास्प। लेकिन आई वुड अगेन से 9 years ago जो चीज़ें अवेलेबल थी फ्रॉम IoT पॉइंट ऑफ व्यू और अब अवेलेबल हैं, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देयर इज ऑल्सो डिफरेंस इन हेल्प अवेलेबल ऑनलाइन, द मटेरियल, द ट्रेनिंग अवेलेबल ऑनलाइन। तो बहुत सी चीज़ों में अब फ़र्क आ गया है काफ़ी ज़्यादा, जो उस वक्त थोड़ा कम था। बट इन जनरल, सवाए इसके कि कोर हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अगर मशीनों में आपने तारें लगानी है उसके अंदर, आर्डुइनो वगैरह चीज़ों के अंदर, उसके अलावा जितना भी काम था वो नॉर्मल CS वाला काम ही था। बेसिकली इट इज़ बेसिक नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, APIs, डेटाबेस, वेब एप्लीकेशन, फुल स्टैक जो काम होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये देखें, मैंने ये लास्ट में ये नीचे इसलिए लिखा था, अब हमारा IoT का प्रोडक्ट है, लेकिन हमारी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ QA टीम है। उसमें सीनियर QA लीड भी हैं, उसमें जूनियर QA के रिसोर्सेज भी हैं, फिर उसमें ऑटोमेशन के रिसोर्सेज भी हैं जो पाइथन में लगातार ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स कर रहे हैं। तो ये सारा काम, रिगार्डलेस कि ये एक IoT एप्लीकेशन है, QA का काम तो नहीं जाने वाला। QA में अगर मोबाइल ऐप है, फ्रंट एंड ऐप है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, यू नीड दैट डेवऑप्स, यू नीड मैनेजमेंट रोल, यू नीड। सो ये एक क्रॉस कटिंग रोल्स मैंने कहता हूँ, जो किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आपके लिए तो ये बेसिकली सेफ है, यू कैन स्टिल ज्वाइन अ कंपनी विच इज़ डूइंग IoT एज अ QA इंजीनियर। फॉर एन IoT एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, अब हमारे पास इस वक्त कंपनी में अगर आप देखें, सो वी हैव सम मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। मेजॉरिटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ आर कंप्यूटर साइंस मेजर। बहुत एक सेलेक्टिव कुछ लोग हैं जो मैकेट्रॉनिक्स उन्होंने किया हुआ है। एक आधा रिसोर्स एयर यूनिवर्सिटी का भी है हमारे पास। सो बेसिकली देर आर, इट डिपेंड्स कि आपने वैल्यू चेन में कहाँ जाना है। इसकी मैं जल्दी से अगर ये वाली स्लाइड निकालूं, ये वाली,
तो अब आपने सोचना है थोड़ा सा कि व्हाट रियली रियली एक्साइट्स यू। क्या ये जो नीचे सेंसर्स हैं, ड्रोन्स हैं, जो बिल्कुल हार्डवेयर वाला काम है, क्या ये आपको एक्साइट करता है और ये आपको आपका पैशन है इस चीज़ में, देन यू शुड मे बी लुक फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस तरफ आप थोड़ा जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा जो फोकस है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की तरफ है, तो बेसिकली आई वुड स्टिल से यू गो फॉर सी एस मेजर विद एन इंक्लेशन टूवर्ड्स, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि ये जो हार्डवेयर सेंसर डिवाइसेस ये कैसे काम करते हैं। आई वॉज इन द सेम पेज, मुझे नहीं पता था ये कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन हमने कंपनी बना ली, सेटअप कर ली, और फिर ख्याल आया कि यार ये थोड़ा सीख भी लें अब, ये इसको करना कैसे है। तो वी डिड दैट प्रीटी मच। छलांग मारने के बाद हमें ख्याल आया कि इसको सीखना चाहिए, फिर हमने सीखना शुरू किया। बट वी वर एबल टू डू इट। मेरे जैसा बंदा कर सकता है तो आई एम श्योर आप लोग इजीली कर सकते हैं। जी, Thanks, Imran. I will not be taking any further questions. कुछ questions बड़े specific हैं to a particular problem. तो उनको मैं ये कहूँगा कि we'll be doing follow-up sessions inshallah, because this particular session was very focused on career advice. तो जो आपके specific questions हैं वो आप community.etlonline.org पे post करें under your question spaces, and then we'll try to get them answered. Over to you, Varda and Mutahir. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much, sir Imran, for sharing your insights and expertise on IoT. It's been a fascinating discussion, and I'm sure our viewers have benefited a lot. Before wrapping up, let's revisit ETL's mission. As a non-profit organization, we are dedicated to creating a dynamic online tech community in Pakistan. We aim to motivate our students and recent graduates even to achieve their best through ongoing learning and self-improvement. We'll help you create projects and learn new skills together. Inshallah, you can join us through community.etlonline.org, where we aspire to a future where Pakistan is renowned for producing exceptional IT professionals. You can join us on community.etlonline.org. We also have an ambassador program going on. We have spaces where you can discuss all your questions. For those who still have some questions remaining, please move on to the space created for these. We have a space on ETL Online. You can refer to that and answer or even ask new questions. Any questions that you may have, and we'll get back to you, sir. Thank you to everyone for watching and joining us today. Thank you so much once again, sir Imran. It was a pleasure. We hope you found the webcast informative and engaging. I hope thanks my voice everyone. is not Have a breaking. good day. जी, thanks everyone. And then इसकी recording और इसकी slides will be available on the platform, and we will be doing further follow-up sessions on this. Thank you very much. Assalamu alaikum.